Hey guys, Ariman Merchant here. Let's start a new video today. आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ Chinese congee with Mongolian stir fry. If you like the video, like, share and subscribe. Let's begin. So I'm going to be leaving all the ingredients required for making this dish down below. याद से इस रेसिपी को बनाने के पहले check all of the ingredients because this is a fairly complicated recipe with lots of continental ingredients and everything. So make sure you get that checklist done before you start cooking. Okay, so for this recipe we are going to be using jasmine rice, which is basically a glutinous type of rice. You can either use this or in a pinch you can also use amba more rice, which can be easily found in India. So when you begin cooking this rice, the key to making it perfectly is the ratio. 1 cup of rice के लिए 8 cups of water. ये रेशियो याद रखना. This is particularly for congee. Alright guys, so this is the sauce that is going to be used in the congee. इसके अंदर आपको आधा ग्लास पानी डालना है, lukewarm. Some प्रीमियम सोया सॉस डार्क 1 टीस्पून, ऑयस्टर सॉस का 1 स्पून एंड ये मैगी का चिकन स्टॉक क्यूब है, इसका आधा. लास्टली ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर. उन सब का मिक्सचर इसके अंदर डालिए एंड थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए तो ये ऐसा दिखना चालू हो जाएगा. नाउ योर मिक्स फॉर द कॉन्जी इज रेडी. राइट गाइस, सो एज यू कैन सी हमारे पानी के अंदर जो 8 कप्स ऑफ वाटर था उसके अंदर उबाल आ गया है. This is the exact kind of boil you're looking for. This is called a rolling boil. एक बार rolling boil आ जाए तो आपके चावल को ड्रेन कर दीजिए and just pop it in. So now इसको वापस ढक दीजिए and एक बार आप इसको ढक दें हाई हीट के ऊपर. So now you're supposed to let this come to a boil again and once this comes to a boil इसको एक बार मिक्स करना and लो आंच के ऊपर 25 मिनट के लिए छोड़ देना. Alright, so as you can see इसमें अंदर सिमर से थोड़ा सा उबाल आ चुका है. Once you see all these bubbles in the kind of like a middle के अंदर, so give it one single stir. एक बार से ज़्यादा इसको नहीं स्टर करना, वार्निंग, वरना ये नीचे चिपकना चालू हो जाता है. एंड यूर डन. अब इसको धीमी आंच के ऊपर छोड़ दीजिए पकने के लिए. पुट ऑन अ टाइमर फॉर 25 मिनट्स एंड लीव इट अलोन. एडिशनल पॉइंट, जब भी आप इसको फाइनली लो हीट पे रखें 25 मिनट के लिए तो उसको हमेशा ऐसे रखना, थोड़ा सा गैप खुला, सो दैट द स्टीम कैन कीप एस्केपिंग. ऑलराइट, सो हमारा कॉन्जी का राइस उबलने के लिए चढ़ चुका है. Now while that is happening, we are going to start with the sauce that is going to go into the Mongolian stir fry. So let's begin that now. Alright, so this is now the sauce that is going to be put in the Mongolian stir fry. This is 1 spoon of oyster sauce, जैसा मैंने आपको पहले बताया था. इसके अंदर अभी हम ऐड करेंगे 2 spoons of dark soy sauce. 1 and 2. 2 spoons of red chili sauce. Ching's अच्छा है, आप और भी कोई ब्रांड यूज कर सकते हैं. That's not an issue. That's 1 and that's 2. No need to be too exact about the measurements. Generally tasty होना चाहिए. And हमारा main ingredient, this is rice wine vinegar. तो ये भी आपको थोड़ा डालना है, 2 spoons ये भी. And you're done. ये बन गया हमारा sauce that is going to be put into the Mongolian stir fry. Let's begin. Alright, so now we're done with the sauce as well. Now we begin the next step of the congee. Congee के लिए हम लोग यहाँ पे जो vegetables हैं, ये vegetables को भी stir fry कर करके हम लोग इनको basically prep करके रख रहे हैं because it's a big headache. Alright guys, so 25 मिनट हो चुके हैं इसको. Now हम इसको खोलेंगे and as you can see इसका most of the water evaporate हो चुका है. Now what you're going to do is you're going to take a nice little करछा and करछे से इसको lightly मिक्स कर देना. मेक श्योर कि नीचे कुछ अटका ना हो. You're going to need a whisk. ये आपको लेना है एंड लाइटली yet firmly इसको whisk करना है. Alright, so ये एक बार हो चुका है. अब इसको फिर से ढक दीजिए एंड लेट इट बी जब तक अब वेजिटेबल्स नहीं तैयार होते. Alright, so आग चालू कर दीजिए आपके बड़े वाले इस पे एंड फुल पे रखिए. फुल पे रखना है क्योंकि ये नाइस लिटिल स्टर फ्राई है. You don't need low heat for this and wait for it to heat up, become nice and hot. मशरूम्स को हाई हीट, एक्सट्रीमली हाई हीट के ऊपर डालना होता है. लेट इट गेट नाइस एंड रोस्टेड. वाइल ये हो रहा है इसके ऊपर नमक डाल दीजिए आधा चम्मच. ऑलराइट, सो मशरूम के अंदर साइज उसका थोड़ा कम हो गया है एंड थोड़ा डार्क कलर पकड़ लिया है. एक बार वो हो जाए सो नाउ यू आर रेडी फॉर योर नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज बीच के अंदर गैप डालो, बीच में थोड़ा ऑयल डालो एंड उसके अंदर डाल दो आपके जिंजर. बीच में प्लॉप कर दीजिए एंड मिक्स मत कीजिए, उसको बीच में थोड़ा बैठे रहने दीजिए. बीच में बैठे रहेगा, अलग से पकेगा. अब ये सारी चीजों को साइड में ले लीजिए. तो कैरेट, थोड़ी सी बाकी चीजें जाएंगी, नॉट एन इशू. कैरेट्स एंड कॉर्न आईबॉल कर लीजिए कितना है रफली. Done. Mix it up. Now let it be.
सो ये रफली 2-3 मिनट से पक रहा है क्योंकि कॉर्न एंड कैरेट्स आर लिटिल हार्डी, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है नाइस एंड सॉफ्ट होने के लिए। रिमेनिंग 2 इंग्रेडिएंट्स, स्प्रिंग अनियन का व्हाइट पार्ट बहुत सारा, एंड ये है ग्रीन बीन्स। ग्रीन बीन्स को चॉप करके रखा है हमने। बोथ गो स्ट्रेट इन, मिक्स इट अप। इसकी आंच को कर देना है धीमा, जस्ट आउटरिंग ऑन होनी चाहिए। एक फाइनल टॉस दीजिए to release the remnants of heat, and now you add in the sauce we have made. कॉर्नफ्लावर की वजह से आप नोटिस करेंगे कि नीचे कुछ सॉस खास बचा ही नहीं है, इवन तो हमने काफी लिक्विड डाला था। इट इज ऑल स्टिकिंग नाइसली टू द वेजिटेबल्स, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। कॉर्न को एक बार खोल दीजिए एंड जस्ट फॉर लक एक और बार उसके अंदर मार दीजिए विस्क, just to get everything nice and rolling. नीचे थोड़ा सा आपको firmness feel होगा as if कुछ चिपका है, but don't worry about that. That's completely normal. The ingredients and just add it to this. इसको whisk से मत mix करना क्योंकि whisk के अंदर सारे vegetable फंस जाएंगे. So just take it and lightly fold it in. Alright. So एक बार आपको वापस उबाल दिख गए, that means that it's done. Now you're going to add in the remaining seasonings and just close it off. So we have more ginger, this time raw. Pop it in. Spring onion. This time the green part, pop it in, and of course the star of the show, coriander. इसके बगैर कोई भी डिश इनफ नहीं होती। बंद कर दीजिए सारी आग को एंड इसको आराम से अब ढक के पड़े रहने दीजिए जब तक आपको खाना नहीं खाना। ऑलराइट, सो द रीजन व्हाई आपको ये डेफिनेटली ढक के रखना है इज बिकॉज इसको अगर आपने खुला रखा सो इट इज गोइंग टू फॉर्म अ स्किन। जैसे चाय के ऊपर बाहर रखते तो किस तरह स्किन आ जाती है ऊपर, वैसे इट विल फॉर्म अ स्किन, ड्राई डेसिकेटेड हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। You're supposed to let the rice soak up the remaining water rather than it escaping away like steam. Now let's begin with the Mongolian stir fry. Right, so अब आग चालू कर दीजिए and now for the final recipe we're bringing in the big boys. This is a cast iron, nice high quality commercial grade wok. अगर आपको चाइनीज बनाना है या कोई भी एशियन डिश बनानी है तो बन जाएगी पतीले में भी, पर इसके अंदर उसका स्वाद एक्चुअली चाइनीज रेस्टोरेंट जैसा आता है, दैट्स अ फैक्ट। राइट, सो एज यू कैन सी यहाँ पे ग्लिमर्स ऑफ स्मोक आना चालू हो गए हैं। नाउ यू रिड्यूस द हीट एंड इसमें मार दो पानी मार के वापस चढ़ा दो। नाउ इट्स टेम्पर्ड एंड रेडी टू गो। दिस हैज साओशा वाइन, दिस हैज सोय सॉस, दिस हैज सॉल्ट एंड दिस हैज ऑयल and corn flour to bind it all together, and of course egg. Okay, so we are going to be starting with adding some oil. Wok को हमेशा बहुत hot रखना होता है वरना उसके अंदर चीजें चिपक जाती है। Take some nice amount of oil, spread it to the edges. ठीक है, खाना edges तक पहुंचने ही वाला है and you don't want it sticking to all around this place. Alright, so once the oil is nice and hot and अब oil भी smoke करना चालू कर रहा है, take all of this and just dump it in. छोड़ दीजिए उसको, आराम से वो रोस्ट होते रहेगा। So first side आपका हो गया। Chop it up in roughly half. एक पूरे हंक को उठाइए and flip it over. Roughly जब सब कुछ flip over हो जाए तो फिर से उसको छोड़ दीजिए पकने के लिए। तो एक बार दोनों sides almost equally हो जाए शेयर कि पता चल रहा है हो चुका है, तो just give it a nice little toss. निकाल लीजिए। Alright, so now for this recipe we're going to be using the sauce we made earlier and a simple slurry. अब ये slurry क्या होती है कि ये है पानी and cornflour just to make it thick. सारे चाइनीज वाले ये यूज करते हैं and this is a very simple thing to make. आग को चालू कर दीजिए फुल हीट पे as usual and इसको रोस्ट होने दीजिए। We begin with the ginger. बेरहमी से बुनाई कीजिए जिंजर की, सब कुछ फुल हीट पे। जिंजर के एजेस के ऊपर ब्राउननेस दिखना चालू हो तो गार्लिक, लेट इट गेट रोस्टेड। राइट, सो इसके एज पे भी आपको ब्राउननेस दिखना चालू हो जाएगा। नाउ द कैप्सिकम एंड द चिली बोथ एक साथ, जस्ट ड्रॉप इट इन। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप इसको ऐसे मिक्स करेंगे इसको आग के बहुत ऊपर लेके जाके मत करना वरना उसकी हीट रिड्यूस होना चालू हो जाएगी। ऑलराइट, सो नाउ पुश ऑल ऑफ द कैप्सिकम एंड चिली डाउन टू हियर, गेट रेडी फॉर अ फ्लैम्बे। ये कंप्लीटली ऑप्शनल स्टेप है। नाउ यू थ्रो इन द अनियंस। स्टर फ्राइज वगैरह के ना अनियन हमेशा एंड में डालते हैं क्योंकि उसको ज्यादा पकाने की जरूरत ए होती नहीं है एंड बी वो हीट रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा है। अनियन को 10-15 सेकंड दीजिए एंड ऐड इन द चार्ड ब्रोकली। दिस इज द स्टार ऑफ द शो, इट हैज द मोस्ट फ्लेवर। सो ब्रोकली को भी हमने 10-15 सेकंड दे दिए, दैट्स ऑल इट नीड्स क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली अनियन एंड ब्रोकली प्रैक्टिकली कुक थिंग्स। जो सॉस हमने बनाया था फुल हीट पे, ये आवाज सुन रहे हैं, ये आवाज है स्वाद की। मिक्स इट अप बिफोर इट गेट्स टू ड्राई, ऐड द मटन एज वेल क्योंकि बहुत ड्राई हो गया तो
कुछ भी सॉस बचेगा नहीं मटन के अंदर मिक्स होने के लिए। जस्ट गिव इट अ फाइनल टॉस। थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं जस्ट टू हाइड्रेट द मटन। ये आधे मिनट से रफली पड़ा हुआ है। एज यू कैन सी धुआं निकल रहा है एंड नॉइज। ये नॉइज का मतलब है it has started to roast from underneath and it is ready for our last ingredient which is the corn flour mixture. अब मैंने काफ़ी बनाया है but you need roughly 3 spoons of this stuff. Okay, this is not very wet to begin with. ये बस उसको roughly bind together करने के लिए। Give it a nice last stir. आग अभी हमने बंद कर दिया and it's done. Alright guys, so the food is cooked now. We are going to eat it. If you like the recipe, like, share and subscribe the video. And of course, give me a thumbs up if you want.